Good morning, class. I'm Professor Samita Shinde. I'm going to teach you secretarial practice, that is SP. Now, chapter number 1. The name of the chapter number 1 is Introduction to Corporate Finance. The term finance is not new for you all. Last year you have studied in the name of capital or the money. Yes? So now I'll proceed with my chapter number 1, which is Introduction to Corporate Finance. It is contains meaning, importance, capital requirements. This capital requirements again divided into two types, that is fixed capital and working capital. There is one more important concept in this chapter is capital structure, its meaning, definition, components of capital structure, and lastly distinction between fixed capital and working capital. Now I'll begin with the introduction part which is explained in your books or the textbooks. It is explained that the term finance. Now the term is related to money and money management. Money and money management. It is related with inflow and outflow of money. It is related to inflow and outflow of money. I'll give an example. सबके घर में सबके पेरेंट्स कुछ न कुछ इनकम अर्न करते हैं in the form of salary or the wages. Now सबके घर का बजट डिसाइडेड होता है कि कहाँ पे एक्सपेंसेस करना है, कहाँ पे एक्सपेंसेस नहीं करना है. तो जो आपके घर में इनकम आता है आप लोग उसको इनफ्लो कहते हैं और जो कुछ आप एक्सपेंसेस करते हो उसको आप लोग outflow कहते हैं. Till this everyone, I hope so everyone understand. Now the next line is given, success of any business depends on the efficiency of managing funds. That means कोई भी बिजनेस का आप सक्सेस देखो आपको क्या दिखाई देगा कि कोई भी बिजनेस का सक्सेस is So every business success totally depends on your efficiency of funds. Now you can see here, आपको ये डायग्राम में ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे कंपनी के साल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो टॉप की कंपनीज होते हैं तो उनका प्रॉफिट भी बढ़ते जाता है और जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता है वैसे वैसे उनका एफिशिएंसी ऑफ फंड्स या फंड्स अच्छे से यूज करने की स्ट्रेटजी भी अच्छे से हो जाती है. Now, the Henry Ford, he is rightly said that the money is an arm or a leg, use it or lose it. This clearly means that it brings out the significance of a finance for the success of a business. Now, money is an arm or a leg. अब आर्म या लेग की आपको आर्म और लेग का इम्पोर्टेंस सबको पता होगा. वैसे ही मनी कोई भी बिजनेस हो मनी चाहिए. विदाउट मनी यू कैन नॉट गो प्रोसीड और यू कैन नॉट गो फर्दर. पैसा नहीं है, फंड्स नहीं है, मनी नहीं है, फाइनेंस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते. तो बेटर आपको वो अच्छे से यूज करना है जितना आपके पास है, या नहीं यूज करोगे डेफिनेटली आपका लॉस पक्का है. This means what कि फाइनेंस इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड. छोटा भी बिजनेस स्टार्ट करना आपको पैसा चाहिए. पैसा नहीं है आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा. पैसा नहीं है आपका परफॉर्मेंस मेजर नहीं होगा. पैसा नहीं है तो आप आगे आपका ग्रोथ नहीं हो सकता. So that's why finance is required everywhere in your business. So I'll proceed to the next. Now the meaning and definition of corporate finance. The corporate finance deals with the raising and using of finance by the corporation. अभी हर कोई फाइनेंस जो कोई कंपनी है, आपने कंपनी के टाइप्स लास्ट ईयर देखे हैं, तो जो कोई कंपनी है तो उनको फंड्स रेज करना है. फॉर एग्जाम्पल 10 रुपया डाला तो उनको 100 रुपया एक्सपेक्टेड होता है. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जियो इंडस्ट्री. जियो इंडस्ट्री
जितना आपको देती है, जितना इंटरनेट आपको देती है, उतना आपसे रिटर्न पैसा भी लेती है। यस, तो ऐसे क्या हुआ, फंड जनरेट किया, और जितने सारे फंड्स मिलते हैं उसको अच्छे से यूजिंग फाइनेंस बाय अ कॉरपोरेशन, आपको अच्छे से वो फंड्स यूज करना है। जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतना आपको लॉस पक्का है। तो आपको लॉस नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज योर फाइनेंस, और द कॉर्पोरेशंस आर यूजिंग देयर फाइनेंस वेरी इफिशिएंटली। आपको अच्छे से ही यूज करना है। It deals with the financing activities of the corporation, capital structuring and making investment decision। तो आपको क्या करना है कि आपको फंड जनरेट करना है, फंड्स रेज करना है, फंड्स लेना है, उसका प्लानिंग करना है कि आपको कहाँ पे कितने फंड्स कहाँ से लेना है। यस, फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप क्या करोगे, आप क्या घर से पैसे लोगे, आपके पेरेंट्स से पैसे लोगे, फ्रेंड्स से पैसे लोगे, और बैंक से भी पैसे लोगे। लेकिन आपको ज्यादा इंटरेस्ट कहाँ पे करना पड़ेगा, आपको बैंक में पे करना पड़ेगा, या आपको घर वाले को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, या फ्रेंड्स को देना पड़ेगा। आपके घर वालों ने या आपके फ्रेंड्स ने जो कुछ पैसा दिया है वो आपको कम से कम इंटरेस्ट पे करके देना है, या नॉमिनल या जीरो इंटरेस्ट पे करके। बट बैंक से कुछ भी 100 रुपीज भी लिया, या 1000 रुपीज लिया, या करोड़ों रुपीज लिया, आपको पक्का क्या पे करना है, इंटरेस्ट तो पे करना ही है। सो कैपिटल स्ट्रक्चरिंग मीन आपको ये जो फंड्स है वो कैसे जनरेट करना है, उसके बाद ये फंड जनरेट होने के बाद आप यूज करोगे, तो उसके बाद जो लेफ्ट ओवर होता है, जो आपका इनफ्लो एंड आउटफ्लो का जो रिमेनिंग पार्ट होता है, दैट कम्स टू योर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करोगे, आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है। सो ये आपको डिसाइड करना है कि कंपनी के लिए कहाँ से इन्वेस्टमेंट में करूँ, कहाँ पे मुझे फायदा ज्यादा होगा। Next definition is given by Hogland Express. His view that corporate finance deals primarily with the acquisition and the use of capital by business corporation. So basically, corporate finance means आपने कितना फंड जनरेट किया, आपको कितना फंड्स मिला, और वो आप कितने अच्छे से यूज कर रहे हो, दैट इज मीन बाय योर कॉर्पोरेट फाइनेंस। जितना अच्छे से यूज करोगे, डेफिनेटली यू कैन succeed, definitely your success will happen। Next is corporate finance includes। Now what does a corporate finance include? आपकी corporate finance में क्या क्या आता है, फाइनेंशियल प्लानिंग आता है कि आपको कहाँ पे कितना एक्सपेंसेस करना है, कहाँ पे डालना है पैसा, इस प्लानिंग करना है कि आपके फॉर एग्जांपल आपको कंपनी को या कॉरपोरेशन को कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल लास्ट ईयर ज्यादा है, तो आप नेक्स्ट ईयर कम कर सकते हो। सपोज आपका प्लांट एंड मशीनरी पे डिप्रिसिएशन बहुत ज्यादा चार्ज हो रहा है, तो आप ऐसी मशीनरी रखोगे नहीं, आप अच्छी मशीनरी लोगे जिसपे आपका कम एक्सपेंसेस होगा। स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट। नाउ द कैपिटल मार्केट इज बेसिकली फॉर योर लॉन्ग टर्म फंड्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टडी कि आपका कैपिटल कहाँ से लेना है, कौन से फॉर्म में होगा। Now this capital can be generated in the various form। ये आपको नेक्स्ट है, कैपिटल स्ट्रक्चर में है आपको कि कैपिटल आपको कैसे कौन से तरीके से लेना है। उसमें शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। सो दिस इज इंक्लूडेड फॉर लॉन्ग टर्म। उसमें भी टाइप्स होते हैं। Now money market। Now money market is study of money market। मनी मार्केट आप किस लिए स्टडी करोगे, मनी यानी क्या, पैसा। तो ये पैसे का जो मार्केट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, छोटा सा एक दिन से लेके एक साल तक आप कितनी भी इन्वेस्टमेंट करो तो उस पे आपको रिटर्न्स मिलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ मनी मार्केट। नेक्स्ट शेयर मार्केट। एज वी नो दैट दिस इज कॉल्ड अ स्टॉक एक्सचेंज। नाउ अगेन दिस इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंडरी मार्केट। Yes, so this study is in your this concept you are supposed to study in the next further chapters. Now next is capital formation।
आपका कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा, आप कैसे रखोगे, कैसे प्लान करोगे. So that is your capital formation. Next is your foreign capital. Now हमें पता है कि इंडिया में बहुत सारी कंपनी है. लास्ट ईयर हमने पढ़ा है MNCs. तो इंडिया के ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो MNCs है, तो वो बाहर की कंट्रीज में भी ऑपरेट करते हैं. तो वहां से क्या, वहाँ पे कैसे कैपिटल होगा, वहाँ पे कैसे फाइनेंस मैनेज करोगे, वहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या होगा, कैसे प्रोडक्ट आपका दिखेगा, या जो कुछ है आपके रिलेटेड concept से related, finance से related. Now next is your bank and other financial institutions. Now बैंक से कितना पैसा लेना, आपको बैंक को कितना पे करना है. दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, को हम लोग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं. So corporate finance includes everything: banks and other financial institutions, foreign capital, capital formation, study of share market, study of money market, study of capital market, and financial planning. All this is included in your corporate finance. Yes. So in detail we are going to see in the next classes. Till time being, just understand the concept. No need to worry if you don't understand. Now the role of finance manager. Now this all finance is managed by the finance manager. हर कोई डिपार्टमेंट होता है, कंपनी में डिपार्टमेंट होता है, तो उसमें डिपार्टमेंट होगा फाइनेंस का, एक होगा मार्केटिंग का, एक होगा आपका प्रोडक्शन का. सो दीज आर द वेरियस डिपार्टमेंट, और ये डिपार्टमेंट के हेड को आप क्या कहोगे, मैनेजर. तो हमें यहाँ पे जरूरी कौन सा मैनेजर है, हमें जरूरी है ओनली फाइनेंस मैनेजर. अभी ये फाइनेंस मैनेजर क्या क्या रोल परफॉर्म करेगा, तो उसके रूल्स. द फर्म हैज एडिक्वेट फाइनेंस, फर्म के पास रिलेटेड या जितना चाहिए उतना पैसा है क्या, वो देखिए. दे आर यूजिंग राइट सोर्स ऑफ फंड्स दैट हैव अ मिनिमम कॉस्ट. कम से कम पैसा डाल के जो कुछ आपको फंड्स है वो अच्छे से मिलने चाहिए. या आपको कंसेप्ट बाद में समझना है, लेकिन आपको मिनिमम पैसा डाल के. फॉर एग्जाम्पल सब लोग गोल्ड परचेस करते हैं, तो गोल्ड का प्राइस हमेशा बढ़ता है, हमें पता. दैट मीन्स व्हाट, ना हमने डाला है उससे ज्यादा हमें एक्सपेक्ट होता है. द सेम कंसेप्ट इज फॉलोड हियर. द फर्म यूटिलाइजेस रेज फंड्स इफेक्टिवली. जो कुछ हमें फंड्स मिले हैं उसका वेस्टेज तो नहीं हो रहा, वो अच्छे से हम लोग यूज कर रहे हैं कि नहीं. सो दैट ही हैव टू चेक इट. They are generating maximum return for its owners. Now who is the owner? We all know that the shareholders are the owners. The shareholders invest their hardcore money in the companies. Yes. So what they expected? Good returns. Suppose your company ABC is your company ABC. So that company is not going to give any returns. So is that shareholder come back to you? Definitely no. So for that purpose, the owners must be satisfied with the good or the maximum returns. Yes.